हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एंपीडिया चैनल। आज मैं आपके सामने कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ। इनफैक्ट 7 स्टॉक्स लेके आया हूँ आपके सामने, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर हैं। और उनमें मेरा ख्याल है हम एंट्री ले सकते हैं बड़े आराम से और अच्छा पैसा कमाया जा सकता है उन स्टॉक्स में। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड विल डिस्कस द टेक्निकल्स ऑफ दीज स्टॉक्स। तो सबसे पहला स्टॉक जो मेरे पास है आपके लिए, वो स्टॉक है पनामा पेट्रोकेमिकल। अगर पनामा की बात करें तो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 34 रुपीज पे, 33 रुपीज पे। और उसके बाद इसका जो लो था वो 14 रुपीज था। और वहां से ये स्टॉक आज की डेट में करीब करीब 240 रुपीज पे मिल रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे इस स्टॉक ने ये 240 रुपीज का जो हाई था वो इससे पहले भी लगाया था 1 जनवरी 2018 में। उसके बाद ये स्टॉक का प्राइस किस तरीके से नीचे गया वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये जो फाइनल कॉफिन इन द नेल था वो इन द फॉर्म ऑफ कोविड था। ये जो सबसे बड़ा रेड कैंडल आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये कैंडल फाइनल का डाउन साइड इसमें देखा गया। उसके बाद स्टॉक का ने एक रैली दिखाई है और काफी जबरदस्त तरीके से स्टॉक 24 रुपीज से चढ़ के आज की डेट में 240 रुपीज पे आ चुका है। तो ये था इसका मंथली चार्ट। हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जो स्टॉक है, स्टॉक अब अपनी वीकली रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो डाउन स्लाइड था, इट इज अ डाउनवर्ड चैनल। सो द स्टॉक हैज stock came down with this downward channel, and then this downward channel broke on the upside and the stock rallied to 240 levels. Right now stock is at 240 levels, and there's a good chance that this stock can go higher than this. तो आइए अब इसका डेली चार्ट देखते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन द डेली बेसिस हियर। सो दिस इज द चार्ट। So let me tell you first, I had suggested this stock to my clients, and they entered it around 210 rupees, and we booked our profit at around 260 rupees. So this was one rally which we enjoyed in this stock. Now the second rally is that, as if you look at this stock is in an upward channel. और ये black line यहाँ पर आप देख रहे हैं, this black line is the weekly resistance which is coming from the weekly charts. So let me just make it a little better. Yeah. So this channel is going like this, and this is the low, and now the resistance comes here at the fourth point, which is 260 levels. So that stock has corrected from 260 levels, which was the weekly resistance also. Now the stock is gazing along this lower channel line, right? It's gazing along. If you see here, it is just gazing along this channel line. And I think stock is quite ready now to take on this weekly resistance. But let's not hurry. Let's wait for the stock to close above this weekly resistance. Once it closes above this weekly resistance, because it's a major resistance which the stock is going to negotiate now. Once the stock closes above this weekly resistance here and gives a successful retest, then probably we can enter into this stock. एंड एज फार एज द अपसाइड ऑफ द स्टॉक इज कंसर्न, इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा अपसाइड है। इसमें अराउंड मेरा ख्याल है हम 350 लेवल्स तक इस स्टॉक में राइड कर सकते हैं। So this is the first stock, which is Panama Petrochemical. You don't have to enter directly into this stock. You have to wait for it to cross the weekly resistance. Once it crosses the weekly resistance, then you can definitely look at the stock. The second stock on my radar is Astral. Now Astral, let me just rub it off first. First let me show you the monthly chart of Astral. पहले मैं आपको इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ। एस्ट्रल एक जबरदस्त कहानी है। एस्ट्रल अगर आप देखें तो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था एट 4 रुपीज 60 पैसा in 2007, and then the stock price went down to around 2 rupees. No, I think it went down to 1 rupee 80 paisa. And from 1 rupee 80 paisa, the stock is at 2040 levels, right? So you can imagine how much stock has rallied. Look at this. These are astronomical returns. 8,000, 86, 91,000 something returns. 91,000 returns.
91,000% returns, I mean to say. So the stock has rallied heavily. I don't know आप तब कहाँ थे जब ये स्टॉक इतने कम लेवल से मिल रहा था. It was available at around 2 rupees 10 paisa, right? Even I was not around at that time. So we missed the rally, but now let's try to catch whatever we can. Okay, so let us just let me just rub this off here. Okay, now this is the rally which the stock has shown. Just see how far it has gone. There is no stopping as far as this stock is concerned. Now let's go to the weekly charts now. Weekly chart, if you see here, this is this corona. It was hardly affected by corona. It didn't get affected much. काफी थोड़ा सा करेक्शन स्टॉक में आया और उसके बाद वापस स्टॉक ऊपर जा रहा है. तो आज की डेट में क्या हो रहा है, अब हम इसका डेली चार्ट देखते हैं. लेट दिस इज द डेली चार्ट. नाउ दिस इज अ वेरिएशन ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न. So normally in a cup and handle pattern, you must have seen that a cup gets formed, and then this what you call the handle is formed like this here, or there may be one more contraction like this here. But in this case, that handle formation did not happen here below the neckline. You see this pink color line. This is the neckline. So there was no what you call handle formation below this neckline. What happened was that price crossed over, went above this neckline and started consolidating here. So what I did was that I entered at this level here. I was expecting that stock will go up, but it didn't, right? I'm still invested in this stock. But now I think that the stock is absolutely ready to go up. तो दोस्तों ये जो एस्ट्रल है, अगर आप इस एस्ट्रल को अच्छे से क्लोजली देखें तो ये किस तरीके का जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं. तो इस पैटर्न में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कप फॉर्मेशन हुई है. तो आमतौर पे कप एंड हैंडल पैटर्न में ये होता है कि कप बनने के बाद ये जो नेकलाइन है, जो पिंक कलर की लाइन आप देख रहे हैं, ये एक नेकलाइन है. तो हैंडल भी इसी नेकलाइन के नीचे बनता है. तो वो हैंडल में एक या एक से ज्यादा कंप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन इस केस में वो हैंडल नहीं बना. प्राइस सीधे ऊपर चला गया और उसने इस नेकलाइन को क्रॉस कर दिया. यानी कि स्टॉक में स्ट्रेंथ तो है. There was no compression and cross and the price directly went above this neckline. Price neckline के ऊपर चला गया और उधर कॉन्सेप्ट ये कंसोलिडेट होना शुरू हो गया. तो यहाँ पर अगर आप देखें काफी अच्छी कंसोलिडेशन हुई है. और अब ये जो तीन कैंडल्स यहाँ पर बने हैं, ये तीनों कैंडल्स अब ये इशारा दे रहे हैं कि वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं और प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रेड हम ले सकते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखें 2040 स्टॉक का प्राइस है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये स्टॉक कम से कम 2600 तक की लेवल तक जा सकता है यहाँ से. तो दिस इज द अराउंड 28 to 30% रिटर्न्स इस स्टॉक में हम बड़े आराम से कमा सकते हैं. तो दोस्तों ये था मेरा दूसरा स्टॉक एस्ट्रल. एस्ट्रल में आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन पनामा में जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी उस स्टॉक में एंट्री नहीं ली जा सकती. अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है ब्लू डॉट. पहले ब्लू डॉट की कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लू डॉट ने किस तरीके का काम किया है पास्ट में. तो ये देखें साहब, ये रहा ब्लू डॉट का स्टॉक आपके लिए. तो ब्लू डॉट की कहानी शुरू होती है 2000 नहीं, आई थिंक इन 1999, right? That time I was in college. I don't know what happened. That's why probably I didn't buy this stock. Anyways, so in Blue Dart, the story started in 1999. The stock got listed at 19 rupees, right? And from there, it has rallied to 7,960 levels, and it's astronomical. Let's see how much the stock has. कितने परसेंट? 39,000% the stock has advanced since then, right? So this is what the stock has done. Now let's go to the weekly chart and see what is the latest. If I see this weekly chart, you can see clearly the stock is in downward channel. Stock was absolutely going down from 2015. The downfall started, and it started going down, 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 and down. Till August 2020, the stock was absolutely in a downtrend. There was no scope, right? From August 20, the fortunes changed for this stock and it started going up and it entered this channel. अब ये जो चैनल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये किस तरीके की चैनल है? It's a very narrow channel. So narrow channel means that the price is in a hurry to go up, right? If you see this channel,
लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस चैनल। ये चैनल मैं आपके लिए बनाता हूं। इस चैनल को अगर आप देखें, ये चैनल ब्रॉड है क्योंकि ये जो दो पैरेलल लाइंस आप देख रहे हैं, इन पैरेलल लाइंस के बीच की जो स्पेस है वो ज्यादा है और इन दो पैरेलल लाइंस की जो स्पेस है वो कम है। यानी कि जो प्राइस है वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, लेकिन अब काफी तेजी से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। द प्राइस केम डाउन वेरी स्लोली बिकॉज द विड्थ ऑफ दिस चैनल इज बिगर, इज मोर, whereas the width of this channel is less. So the price came down very slowly all the way from 2015 to 2021. But now the price is in a hurry. It wants to go up. So the channel is I would say the width is less, right? The distance between these two parallel lines is less. So price is in a hurry to go up. Now, how far has this price advanced since August 2020? If we look here, the price has gone up by around 200%, 240%. So now we have to see whether we can enter into this stock. अब हम देखते हैं कि हम स्टॉक में एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमें अब फोकस करना होगा इस पिंक चैनल पे। तो आइए अब डेली चार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां क्या हो रहा है डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में साहब यहाँ पर एक क्लियर कट एक चैनल है, अपवर्ड चैनल है जिसमें स्टॉक जा रहा है, राइट। और आज की डेट में ये स्टॉक जो है ये इस चैनल की जो लोअर लाइन है उसको उस पे टच कर रहा है और इट्स गेजिंग अलोंग दिस लोअर लाइन, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द स्टॉक बिकॉज इफ आई ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, दिस लाइन, so the stock is at a very attractive level. You're getting the stock at the same price, the price which was in March 2021. So the stock has cooled down, stock has consolidated, and it's at attractive levels. We can enter into this stock now, and we can expect the stock will go till the top of the channel, right? So if it goes till the top of the channel, what is the upside here? Let's try to find out. Let me just make it again. So look at this. So around 28% upside is there. I don't know how much time it will take. It might take 1 or 2 months for it to reach there. I'm sure because the stock has consolidated a lot. Stock ने काफी जबरदस्त कंसोलिडेशन दिखाई है और यहाँ पर ये जो 28% का अपसाइड है बड़े आराम से दिख रहा है कि अचीव हो जाएगा। स्टॉक के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे थे, so nothing to worry about, right? So this was my stock number 3, Blue Dart, right? So Blue Dart is absolutely ready. You can enter into Blue Dart. Again, I'm saying Panama, you have to wait. Astral, you can enter. Blue Dot, you can enter. Now let's go to the third stock, which is ICIL. ICIL, I won't go into more details of it, right? So ICIL, चलिए थोड़ा आपको दिखाई देता हूँ। ICIL has advanced from 22 rupees to 171 rupees. Not that high, अभी उतना कुछ खास ऊपर नहीं गया, लेकिन ICIL मेरा ख्याल है it represents the textile industry. और आपको पता है कि textile has a tailwind going around, right? The textile industry is doing very well, and this stock belongs to this industry. So I'm expecting that this stock will do well. Now let's try to understand what happened to this stock. ये स्टॉक जो था यहाँ से इसने एक जबरदस्त रैली दिखाई और उसके बाद स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में चला गया। इन दिस ट्रेडिंग रेंज उसके बाद यहाँ पर एक डाउनवर्ड चैनल बनी दिसंबर 2020 में, यानी कि कोरोना से पहले ही ये स्टॉक गिरना शुरू हो चुका था। और यहाँ से आप देखें ये स्टॉक लगातार नीचे 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 आया और जब कोरोना के जो केसेस पहली बार आए थे तब तक ये स्टॉक नीचे ही जा रहा था। फाइनली द फॉर्चून चेंज्ड फॉर दिस स्टॉक और अप्रैल में ये डाउनवर्ड चैनल ब्रेक हुई और स्टॉक ने एक अपवर्ड चैनल में ऊपर जाना शुरू कर दिया। यहाँ पर स्टॉक जो है 118 से बढ़ के करीब करीब 170 तक पहुंच चुका है। अभी अगर आप देखें तो स्टॉक ने कुछ ऐसी खास मूवमेंट नहीं दिखाई है, लेकिन अभी जो ये लेवल है, जिस लेवल पे स्टॉक है, ये एक मंथली रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने क्रॉस किया है। और अगर आप देखें इस कैंडल को, this candle which is crossing this resistance, it has huge volumes, right? So someone big has entered into the stock, right? और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रही है। और ये जो कंसोलिडेशन हो रही है यहाँ पर, ये एक बड़ी जबरदस्त कंसोलिडेशन है क्योंकि प्राइस इस कंसोलिडेशन में नीचे नहीं गया। So I can say that it's a time based consolidation, it's not price based consolidation. So these time based consolidations are really good, and if they are on the back of huge volumes then they are even better.
तो यहाँ पर जो ये कंसोलिडेशन हुई है ये ह्यूज वॉल्यूम्स पे हुई है और बाद में यहाँ पर कुछ प्राइस नीचे नहीं गया। और अभी अगर आप देखिए स्टॉक जो है इट्स एट अ कन्फ्लुएंस। व्हाट डू वी नो, व्हाट डू वी मीन बाय कन्फ्लुएंस? कन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि ये जो आपकी ये जो चैनल का ये जो लोअर लाइन है और इस हॉरिजॉन्टल रेंज का जो ब्लू लाइन है, ये दोनों एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं। तो इस पॉइंट पे स्टॉक को एक डबल सपोर्ट है, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट है और इस इंक्लाइन लाइन का भी सपोर्ट है। तो यहाँ से स्टॉक बड़े आराम से ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जा सकता है? इट कैन गो एटलीस्ट अराउंड 18 to 19% फ्रॉम हियर। सो ICIL इज एब्सोल्युटली रेडी, वी कैन बाय इट, बट स्टॉप लॉस इज अ मस्ट, राइट? स्टॉप लॉस के बगैर हम काम नहीं करते। स्टॉक मार्केट में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। और मैं आपको अपना बता दूं, मेरी तरफ से जो भी स्टॉक्स मैं आपको बताता हूँ, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी चाहिए और मेरे जो रिकमेंडेड स्टॉक है उनके साथ डिस्कस करें, और अगर वो आपको गो हेड देते हैं तो आप इनमें एंटर कर सकते हैं। तो खैर, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इंडो काउंट इज एब्सोल्युटली रेडी। आई हैव गिवन यू द आर्गुमेंट आल्सो कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है। इस स्टॉक ने अभी तक कुछ खास काम तो नहीं किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये कुछ अच्छा कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है एक कमाल का स्टॉक है जिसको हम अल्काइल अमाइन के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक एक मल्टी 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 बैगर स्टॉक है। इस स्टॉक का जिस इंडस्ट्री में काम करता है वहां पर आ, इस स्टॉक की मोनोपोली है, इस कंपनी की मोनोपोली है। तो ये स्टॉक कितना परसेंट ऊपर गया है, यहाँ पर देखिए 1 रुपए में लिस्ट हुआ था और आज की डेट में करीब करीब 3,870 रुपए पे पहुंच गया है। और ये लिस्ट कब हुआ था? 2002 में। तो आप 2002 में कहाँ थे? सोचने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ये स्टॉक लिया होता, 1 रुपए में स्टॉक लिया होता, तो आज ये 3871 रुपीज पे, यानी कि 36,000 रिटर्न, नो नॉट 36,000, 3,60,804% रिटर्न्स, राइट? तो ह्यूज रिटर्न्स, एब्सोल्युटली ह्यूज रिटर्न्स। मतलब अगर आपने 1,000 रुपए के शेयर लिए होते तो आज आपके पास 39 lakhs होते, और अगर आपने 10,000 रुपए के शेयर होते तो शायद आपके पास करोड़ों में रुपए होते। मतलब आपके 10,000 रुपए आज करोड़ में कन्वर्ट हो गए होते। खैर, अब चलिए, ये स्टॉक का हमने देख लिया कि किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है। अब हम जरा इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं और वहां देखने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक किस तरीके से काम कर रहा है। एक सेकेंड, मैं जरा थोड़ी एक ब्रेक ले रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। या ओके, अब हम इसके वीकली चार्ट की तरफ चलते हैं। वीकली चार्ट में कुछ खास तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। वीकली चार्ट में बस ये दिख रहा है कि ये स्टॉक सिर्फ ऊपर 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 ही जा रहा है। 279 रुपीज का था अगस्त 2019 में, और अभी 3,696 रुपए का। इट्स एनॉर्मस रैली, इनॉर्मस रैली। अब इसका डेली चार्ट देखते हैं साहब। अब हम आ गए हैं इसके डेली चार्ट पे। इस स्टॉक ने जब जब कंसोलिडेशन किया है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि तब तब ये स्टॉक एक मैसिव तरीके से ऊपर गया है। और यहाँ देखिए आप, स्टॉक ने जो रैली दिखाई थी, वो रैली दिखाई थी फ्रॉम दीज लेवल्स। इट वेंट अप एटलीस्ट अराउंड 90%, 90% स्टॉक ऊपर चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखें, पहले तो देखें ये वॉल्यूम्स कितने जबरदस्त थे, जिन वॉल्यूम्स ने स्टॉक को ऊपर लिया। उसके बाद स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में चला गया। ट्रेडिंग रेंज में जाने के बाद अब स्टॉक जो है, मेरा ख्याल है कंसोलिडेशन इसकी काफी कंप्लीट हो चुकी है। मई से इस ट्रेडिंग रेंज में है ये, मई और जून, और अब जुलाई आ गया, तो 2 महीने की ट्रेडिंग रेंज है। 2 महीने की कंसोलिडेशन है स्टॉक की। ये स्टॉक ज्यादा कंसोलिडेट नहीं करता। ये स्टॉक जब भी कंसोलिडेट करता है तो जबरदस्त तरीके से ब्रेकआउट देता है। आई हैव ट्रेडेड दिस स्टॉक मेनी टाइम्स एंड आई हैव मेड वेरी गुड मनी इन दिस स्टॉक। तो अभी एक और मौका हमारे पास है इस स्टॉक में एंटर होने के लिए। अगर हम यहाँ पर एंटर हो जाए तो एक अच्छा अपसाइड स्टॉक में हो सकता है। मेरा ख्याल है अराउंड 20% रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक फ्रॉम द करंट लेवल्स, राइट? तो ये था Alkyl amine. So guys, in Alkyl amine, if you see the stock has given an upside of 80%, then the stock went into a trading range. It stayed in this trading range for almost 2 months. And I can assure you that whenever this stock goes into the trading range, it gives a huge move, right? So I have traded this stock many times, and I have made good money in this stock. So now is the time when this stock is absolutely coming out of the oblivion, and it
will definitely give a move on the upside. So we can make an entry in this stock at these levels. Our stop loss will be slightly lower than here, and it can give us an upside of around 20% from here. Okay, so this is my 1, 2, 3, 4, and fifth stock. This stock is also ready to move up. So other than Panama, all the four stocks are absolutely ready to go up. Next is Grindwell. I will not go into the details of Grindwell now. Okay, and let me show you. थोड़ा आप उससे आपका कन्वेंशन बढ़ जाएगा कि ये स्टॉक क्या जबरदस्त स्टॉक है। देखिए साहब, ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 53 रुपीज पे, बाद में नीचे जाके 36 रुपीज पे चला गया, एंड सिंस देन इट हैज ओनली रैलीड. It has not gone down. Even if you see during the corona period, it didn't go that down, and it consolidated a lot. There was huge consolidation in the stock, and that consolidation after that during the corona, it didn't fell much. So it resisted that corona fall. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टॉक ने काफी देर तक कंसोलिडेट किया. 2017, 2018, 2019 में 3 साल तक ये कंसोलिडेशन चलती रही, और उसके बाद कोरोना फॉल में स्टॉक हल्का सा नीचे गया. तो आप इससे स्टॉक की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टॉक कितना ताकतवर स्टॉक है, कितना स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर. तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक नीचे चला गया, और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी बेस बनी, और बाद में वापस ऊपर की जर्नी शुरू हो गई. अब हमें फोकस करना है कि क्या हम स्टॉक में एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ये देखें, ये वो कंसोलिडेशन है जो वो कंसोलिडेशन चल रही थी 2017 से शुरू हुई थी, और 2020 तक इस कंसोलिडेशन चली, यानी कि 3-4 साल तक ये कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक, और 4 साल के बाद इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया. यहाँ पर ये देखें आप, उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद मैं इधर एक लाइन बनाता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ब्रेकआउट दिया. ये देखिए स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद वापस इसको रीटेस्ट किया, तो रीटेस्ट के बाद स्टॉक ऊपर ही जा रहा है. तो मतलब अब स्टॉक जो है ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बल्कि काफी हद तक ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी भी स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड है, दैट इज फॉर श्योर. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेली चार्ट ऑफ दिस स्टॉक. उधर हमें पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि क्या हो रहा है. तो दोस्तों, ये वो रेजिस्टेंस थी जिस रेजिस्टेंस की मैं आपको बात कर रहा था, जो स्टॉक ने तोड़ी, और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया और वापस इस रेजिस्टेंस को नीचे टेस्ट किया. टेस्ट करने के बाद क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया और एक ट्रेडिंग रेंज में चला गया. यहाँ पर स्टॉक ने इस ट्रेडिंग रेंज के अपर हाफ में ट्रेड करना शुरू किया, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, और स्टॉक फटाक से ऊपर चला गया. और यहाँ पर आप देखें इसके वॉल्यूम्स कितने जबरदस्त थे, जिन वॉल्यूम से ये स्टॉक ऊपर गया और इस दूसरी ट्रेडिंग रेंज में चला गया. अब स्टॉक इस ट्रेडिंग रेंज के बिल्कुल टिप तक पहुंच चुका है, इस रेजिस्टेंस तक पहुंच चुका है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां से स्टॉक एक ब्रेकआउट जरूर देगा. तो यहां पर हम एक एंट्री ले सकते हैं स्टॉक के अंदर, बल्कि एक एंट्री यहां पर भी ली जा सकती थी इस लोअर लाइन के अंदर, लेकिन खैर वो हमसे मिस हुई. लेकिन अब हम अभी भी हम इस स्टॉक के अंदर एंटर कर सकते हैं. तो अभी भी ये स्टॉक एक अच्छा मूव दे सकता है. अगर आप ये स्टॉक एक लंबी एक ड्यूरेशन के लिए इसको बाय करें, तो ये स्टॉक आपको एक अच्छा पैसा कमा के दे सकता है, बहुत ही अच्छा पैसा कमा के दे सकता है. So guys, as far as this stock is concerned, this stock came out of this resistance which I just spoke about. It came out of it, then retested the resistance, then it started trading in a range. In this range, finally it gave a breakout here on high volumes. The price broke this trading range and it went up, and again the stock went into a trading range. So now the stock is absolutely ready to break this trading range. And if you see the volumes, look at this volume, this candle, right? Look at this candle. Let me just expand it for you. Okay, look at this candle, the volume in this candle, right? This candle, huge volume. And this candle, there's a buying pressure in this because the wick is long, right? The lower wick is long. Look at this candle, the lower wick is quite long, so there's huge buying pressure here, right? So I can say that this stock is quite ready to break the resistance here. So Grindwell Norton is a buy for me, for sure. नेक्स्ट एक और कंपनी है जो कि जिस कंपनी की एक जबरदस्त मोनोपोली है, बेहतरीन कंपनी है. इस कंपनी को आप मिस मत कीजिए. ये कंपनी का नाम है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज. ये लिस्ट हुआ था 144 रुपीज पे 2018 में,
और उसके बाद यहाँ पर इसने एक बॉटम बनाया 116 का, और वही बॉटम फिर से टेस्ट हुआ 116 का, और उसके बाद देखिए ये स्टॉक सिर्फ ऊपर जा रहा है. इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. इट डजंट नो हाउ टू गो राइट, इट डजंट नो हाउ टू गो लेफ्ट. It's only going up. And if you see, there's only one red candle that was in 1st October 2020. That means there is no effect of corona. Sorry, यहाँ पर कोरोना का फॉल आया था. ये एक रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये कोरोना का फॉल है. उसके अलावा एक रेड कैंडल आपको यहाँ दिख रहा है अक्टूबर में. यानी कि अगर आप देखें फ्रॉम 1st October till now, 1st October 2019 till now, this stock has not seen much downfall at all. Biggest downfall which was seen was in 1st October 2020. So this stock is extremely powerful stock. Let's go to the weekly charts. वीकली चार्ट ये देखें. वीकली चार्ट पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉटम बना, यहाँ पर एक बॉटम बना, देयर आर टू बॉटम्स फॉर्म्ड, और उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया. कितना परसेंट ऊपर चला गया स्टॉक? लेट्स सी. इट हैज गॉन अप बाय अराउंड 192%, राइट, अराउंड 200% आप समझ सकते हैं. अभी स्टॉक कंसोलिडेशन दे रहा है. इसने यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस कप एंड हैंडल. हम इस कप एंड हैंडल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या अभी स्टॉक में कुछ अपसाइड हमें दिखता है या नहीं दिखता. दोस्तों ये देखें, ये रहा आपका कप. विलियम ओ'नील की किताब शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी. उस किताब में वो कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में बताते हैं. तो यहाँ पर जब ये कप बना, उसके बाद स्टॉक ने डायरेक्ट इस कप को तोड़ा ऊपर की डायरेक्शन में, लेकिन कोई हैंडल फॉर्मेशन नहीं थी. तो इट वाज ऑब्वियस कि ये जो ब्रेकआउट है ये ऊपर सस्टेन नहीं होगा. इससे पहले भी मैं एक चार्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूं जिसमें हमने कप एंड हैंडल पैटर्न देखा, और लेकिन कोई हैंडल नहीं बन रहा था, लेकिन हैंडल नेकलाइन के ऊपर बन रहा था. लेकिन यहाँ क्या हुआ कि प्राइस ऊपर चला गया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, राइट. यहाँ पर जो हैंडल बना है वो नेकलाइन के ऊपर बन नहीं पाया, जो कि हमने इससे पहले एक स्टॉक में देखा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा. तो यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ और प्राइस वापस अपना एक हैंडल बनाने के सिलसिले में चला गया. और यहाँ पर ये जो हैंडल फॉर्मेशन हुई है दोस्तों, ये हैंडल फॉर्मेशन, इसकी जो विड्थ है वो इस कप से ज्यादा बड़ी है, राइट. तो जब तक ये स्टॉक इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज नहीं होता, वहां एक अच्छी कंसोलिडेशन नहीं देता और ऊपर जाने के बाद वापस इसको रिटेस्ट नहीं करेगा, तब तक मेरा ख्याल है हमें स्टॉक में एंटर नहीं होना चाहिए. क्योंकि ये जो विड्थ है, इस हैंडल की जो विड्थ है वो कुछ ज्यादा ही बड़ी है. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद यहाँ एक और हैंडल बन जाए, जो कि एक और कंसोलिडेशन हो, उसके बाद शायद स्टॉक ऊपर जा सकता है. सो लेट्स वेट. हो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक अभी इस नेकलाइन को ऊपर की तरफ तोड़ दे और ऊपर चला जाए, लेकिन वी नीड टू वेट. हमें वेट करना होगा. ये इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज होना चाहिए, और अगर अच्छी क्लोजिंग देता है देन प्रॉब्ली वी कैन एंटर. ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये स्टार्ट हुआ था मार्च में, और आज जुलाई है. सो इट्स मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 months, राइट. सो इट इज 7/4/28, sorry, 4/4/16. So it's a 16-week consolidation, right? So yes, this consolidation can give us a very good move, but it's just that we just have to first be patient and see how it closes above the neckline. So friends, this is all that's from my desk. So I have shared around 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 stocks with you. Out of these 7 stocks, it's just that Panama is not yet ready, but it's a very good stock. Panama is at a weekly resistance. अपनी एक weekly resistance पे ट्रेड कर रहा है. जैसे ही Panama weekly resistance के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप Panama में डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं. इसके अलावा बाकी जो स्टॉक्स मैंने आपके सामने शेयर किए, जो 6 स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किए, वो 6 के 6 स्टॉक्स में से एक स्टॉक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है उसको थोड़ा आपको केयरफुली हैंडल करना होगा. उसके अलावा जो बाकी के 5 स्टॉक्स हैं, they are good enough and you can enter in them, but I would request you to take advice of your financial advisor and accordingly decide whether you want to enter into those stocks or you don't want to enter into those stocks. So guys, thank you very much for taking out your precious time and watching my video. I'm thankful to you. So until next time, goodbye and good luck. Thank you.